Good morning, students. So today we are going to study about the hypotonic solutions. Okay. So in earlier video I have told you regarding two processes, that is diffusion and osmosis. In case of gases, the gases move from high concentration to low concentration. So that is known as diffusion. And in case of osmosis, when the water moves from a high concentration level to low concentration level. Okay, so that process is known as osmosis. So if you define this, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration. ठीक है, अब एक चीज़ आती है, we will discuss that and after that we will come to hypotonic solution, that what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water. ठीक है, anything you can take, either sugar solution or salt solution. So what will happen if you put animal cell or any plant cell into this solution? So it was observed that three things could happen. ठीक है, now what could be there? Listen, whatever you have studied in diffusion and osmosis, okay, that is going to be here. If you have understand that, only then you will be able to understand this. Rather, we will discuss about the osmosis only. So what will happen if the medium surrounding the cell, okay, we have dipped the cell in a solution, okay. So if the medium surrounding the cell, it is having the higher water concentration than the cell, what would I say? I say if the medium which surrounds the cell, if it has a high concentration than the cell, okay, it means what does this mean? That the outside solution is very dilute. Okay, means when water concentration will be more, means it is more dilute. Then cell will gain water from the outside medium. It means cell will gain water by the process of osmosis. Right? So such a solution is called the hypotonic solution. Okay. Now see here. Hypotonic solution is a solution surrounding the cell which has higher concentration than that in the cell. Okay, you have placed a cell in a solution. If the solution surrounding the cell has high concentration, surrounding which has high water concentration than that of the cell, so such type of solution is known as hypotonic solution. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि only these molecules, we know that molecules, they are free to move, ठीक है, across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than going out from the cell. ठीक है, सो हम इसका नेट रिजल्ट देखेंगे, दोनों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स सेल में एंटर भी करेंगे और सेल से बाहर भी जाएंगे, बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज देयर, सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव. बट व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर गोइंग आउटसाइड इज लेस and number of molecule which are coming inside the cell, they are more. Okay, so the net result is that water enters the cell, and the cell, if water will enter in the cell, so what will happen, the cell is likely to swell up, तो वो उसमें थोड़ी swelling हो जाएगी because it has gained some water. Okay, so this is the moment you can see water move into the cell. ठीक है, 10% सॉल्ट है, बाकी आप इसमें वाटर है. ठीक है, तो वाटर दिस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ से भी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन से भी अंदर आएंगे, बट द नेट रिजल्ट विल बी लाइक कि इसमें बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द सेल दैट विल बी मोर. सो सच टाइप ऑफ solution is known as the hypotonic solution. So this was the first condition that we saw, that we have kept a cell in a solution of salt. Okay, तो एक तो ये हुआ कि बाहर की
कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल की कंसंट्रेशन जो वाटर कंसंट्रेशन इन द सेल है वो कम है, तो ऑब्वियसली बाहर से जो वाटर है मॉलिक्यूल्स को सेल जो है वो ले लेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इट मे बी लाइक दैट इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। ठीक है, मीन्स सेल के पास जितना वाटर का कंसंट्रेशन है उतना ही जिस मीडियम में हमने उसको डिप किया है उसका भी वाटर कंसंट्रेशन उतना ही है। तो व्हाट विल हैपन, क्वाइट ऑब्वियस, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऐसा नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, मूवमेंट होगा बट इक्वल होगा। ठीक है, सो सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, द वाटर दैट क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन is the same as the amount going out. ठीक है, so there is no overall movement of water. ठीक है, so in that case what will happen to the size? In earlier case we discussed that cell will swell up, but in this case nothing will happen to the cell will remain in the same size. Okay, so let's see here, when the medium surrounding a cell has the same concentration of water as that in the cell, it is said to be the isotonic solution. ठीक है, water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in is the same as the amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. Right? तो ये समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड कंडीशन, व्हाट कुड बी देयर इन द थर्ड कंडीशन। अब पहले हमने देखा बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, दूसरे में हमने देखा इक्वल है, तीसरे में क्या हो सकता है, यस, सो थर्ड केस में क्या हो सकता है कि वाटर कंसंट्रेशन जो है जिस मीडियम में हमने डिप किया है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो सकता है, और सेल का जो सेल है उसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, सो इन दैट केस द सेल विल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, और अगर सेल ने वाटर लूज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था हाइपोटोनिक, सेकंड वाज आइसोटोनिक एंड दिस थर्ड इज हाइपरटोनिक। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर, व्हेन द मीडियम सराउंड्स अ सेल हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन दैट इन द सेल, it is said to be hypertonic. Water crosses the membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than enters it. So therefore the cell will shrink. ठीक है, तो this was all about the condition when a cell is placed in a solution of sugar or salt. Right? So इसमें थोड़ी सी चीज़ और हम और देख सकते हैं, जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या जो फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सो और मोस्टली जो प्लांट सेल्स होते हैं दे टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, सो दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। आपको पता है कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि रूट्स क्या करती हैं। ठीक है, मिनरल्स ऑफ वाटर जो सॉइल में ह्यूमस होती है दैट वाटर को उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, सो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। राइट, अब मैंने आपको क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो सेल के आउटर बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, एज वेल एज इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जिसको हम लिपिड और प्रोटीन बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनसे मिलकर वो बनी होती है। तो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये हो सकता है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ एंड डैश। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट
plasma membrane is made up of organic molecules called lipids and proteins. ठीक है. So one thing more you need to remember that flexibility of cell membrane. ठीक है. तो जो सेल मेम्ब्रेन के ये जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है. बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड एंड प्रोटीन. So this flexibility of the cell membrane that also enable the cell to take up the food, take in the food and other materials from its external environment. ठीक है. So इसकी flexibility की वजह से ये क्या करता है, external environment से food को intake करता है. ठीक है. ये allow करती है सेल को बाहर के environment से food intake करने, food और other materials, ठीक है, which are required by the cell. So such process is known as endocytosis. ठीक है. तो एंडोक्राइसिस एक प्रोसेस होती है, तो वो आप टेक्स्ट बुक में देख लेना उसके बारे में. ठीक है. विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. एक और आता है हमारे पास प्लाज्मोलिसिस. अब इसमें क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस इज द फिनोमेना बाय विच अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे हमने सेल को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है. कौन सा सेल? प्लांट सेल. ठीक है. हमने एक तो चीज़ देख ली कि सेल जो होता है उसको वाटर, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, यहाँ पे स्पेसिफिक है. ठीक है. कि प्लांट सेल जो होगा उसी की बात करेंगे. जब प्लांट सेल होगा दैट इफ दैट लूजेस वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, सो देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी श्रिंकेज और यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल. ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. प्लाज्मोलिसिस इज अ फिनोमेना बाय विच अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस. ठीक है. तो श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. प्लांट सेल पर्टिकुलर प्लांट सेल के केस में जब ये वाटर लूज कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, सो दिस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. अब आता है हमारे पास सेल वॉल. अभी तक हम पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो सेल वॉल जो होती है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट्स. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट दिस सेल वॉल इज. हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, दिस इज नोन एज सेल वॉल, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हम अभी तक सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल होती है. अब सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में जो लेयर होती है, जो कवरिंग आती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल. ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये प्रेजेंट होती है. सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. राइट. सो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है that plant cell wall is mainly composed of, and fill in the blanks may be there. Okay. So it is composed of cellulose. So what the cellulose is? Cellulose is a complex substance that provides structural strength to the plant. ठीक है. ये strength provide करता है जिससे ये मिलकर बनी होती है. Cell wall is present in the plant cell and helps the plant to withstand the environmental changes. तो ये क्यों ज़रूरी होती है प्लांट सेल के केस में? बिकॉज इसको स्ट्रेंथ चाहिए आउटर एनवायरनमेंट से, प्रोटेक्शन के लिए. जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, तो उसके साथ खड़े रहने के लिए, उसको प्लांट को प्रिवेंट करने के लिए, आउटर चेंजेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. राइट. देन कम्स द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस, देखिए एक चीज़ आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी कि आपने जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ कि लास्ट टाइम जब आपने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चर होता है, उसमें 3 चीज़ें आपने देखी होंगी. सेल वॉल, ठीक है, जनरली हम उसमें आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वॉज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वॉज न्यूक्लियस. ये 3 चीज़ें मेन है. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें मेन हैं
अब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ बॉडीज़ होती हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ बॉडीज़ होती हैं, उनको हम वन बाय वन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 3 मेन पार्ट्स हैं सेल के, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ लिया और सेल वॉल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस। हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हैज़ लिखा है न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये लिखा भी हुआ है, दिस पोर्शन इज, ये सेल है पूरा। ठीक है, तो ये सेल के अंदर जो एक सेंटर में एक पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, विच इज़ ऑफ रस्ट कलर, ब्राउन कलर का है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। ठीक है, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें पोर्स होते हैं, तो वो हेल्प करती है न्यूक्लियस को कि जो भी मटेरियल उसको रिक्वायर है उसको इनसाइड लेके आए और जो उसको नहीं चाहिए उसको आउटसाइड ले जाए। अब इसने लिखा आउटसाइड न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, मतलब न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब थर्ड थिंग आती है कंटेन्स क्रोमोसोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें, वेयर डज द क्रोमोसोम्स लाई। तो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स chromosomes which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एंड यू नो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, पूरे चैप्टर हमने पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, chromosomes contain information for the inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA molecules, that is deoxyribonucleic acid, right? So that are known as the DNA। ठीक है, तो क्रोमोसोम किस लिए, हमको मालूम है कि जो भी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के लिए आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं, चाहे वो नेचर हो, हैबिट्स हो, लुक्स हो, so that are just because of the chromosomes। ठीक है, अभी हमने ये देखा अबाउट न्यूक्लियस। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा की हमने बात करी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखी, फिर हमने देखा उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें बताई, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, इट्स अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स को आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, यहाँ से अगर हम तीनों चीज़ें आप देखो तो ये आपकी है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है विद इन दिस सेल, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, इफ़ यू सी हियर, देखो यहाँ पे डॉट्स हैं, यहाँ ये डार्क कलर के डॉट्स हैं, ये सर्कल जैसे यहाँ पे बने हुए हैं एम्प्टी, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो अभी तक आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है। ओके।